म्यूट करता ओके से ओके। हम कुछ नहीं करें, अपने आप हरे आएगा। कृष्णा माता जी। मैंने जब खोला हरे कृष्णा। तब भी यही आया, 12 बजे जाता है। हरे कृष्णा। आवाज ही नहीं आएगी। How many of you visited temple in the morning? सुबह कौन मंदिर गया था? कौन कौन भगवान का दर्शन किया है? Raise your hands. Nobody went to the temple. Yes. Yes. Rajvansh. Very good. And Bhakti. Very good. And Laksh. No, Laksh no. और कौन गया था मंदिर सुबह? How many of you did darshan in the morning? Vasu Yadav. Okay. Very good. Which temple you visited, Vasu? Vasu Yadav. Yes. Nearby you have temple. ISKCON temple you have? नो आती। No. Okay. Vinayak. आप कौन से मंदिर गए थे? चिंतारण महादेव जी। हाँ? चिंतारण महादेव जी। वृंदावन में? मथुरा। मथुरा में? ओके, वेरी गुड। अमृत, आप कौन से मंदिर गए थे? यस अमृत। माता जी हमारे यहाँ कौन दिल्ली रोड है, मेरठ में। ओके ओके, नाउ विल स्टार्ट द क्लास। एवरीबॉडी स्विच ऑन द कैमरास। दिल्ली रोड में कौन है वहाँ? हाँ? ओके ओके, स्विच ऑन योर कैमरास। हरे कृष्ण माता जी। All the boys will switch on their cameras first. Yes, Vishwambar. Hare Krishna, Vishwambar. पुणे टेम्पल। Pune temple. Okay, very good. Vaman. Okay, now we'll start the class. Hold your hands. Everybody will fold your hands. I will share the screen. Yes, everybody can see the screen now. Okay. Everybody fold your hands. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Jena Bhutale Vayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Bhavana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैत नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्णा। Who was not there in yesterday's class? Who was not there in yesterday's class? We will just have a recap of what we learned yesterday. हम कल क्या सीखे थे उसका फटाफट 5 मिनट में हम रिकैप करेंगे। Okay, Brihan and Jayansh. Jayansh, you were not there yesterday? Jayansh? No, I was there. नहीं थे क्लास में?
नो माता जी। राजवंश आप भी नहीं थे क्लास में कल? माता जी आप एक क्लास भी मिस करोगे आपको बहुत कुछ नहीं आएगा, बहुत कुछ आप मिस कर जाओ, इसीलिए आप माता जी क्लास में आना। यस माता जी, I attended the class, but because of poor network connection, ओ I can't ओ I can't understand anything. ओ Yes, Mata ji, I also. who else? Raise your hands, then only I can see you. If you raise your hands, then only I can see you. Who is telling? Oh, Rajvansh. Okay. Kashyap, you were there yesterday. Why are you raising your hands? You were there now yesterday. Why are you raising? Okay. Okay. First question. Just raise your hands. I will call the name and he will only answer. Right? This is the rule of this class. You will not say together. Only the names I will call. Then only that boy will answer. Okay. What is the name of Parikshit's son? परीक्षित के बेटे का क्या नाम है? Just raise your hands. परीक्षित के बेटे का क्या नाम है? Okay. Yes. परीक्षित के Can बेटे. I? Yes, Shomani. Yes, Shomani. Mata, Tell. Yes, Shomani. Tell. hello. Yes. Mata ji, can I? See, if you don't know the answer, you will not raise your hand. Vinayak. Vinayak, tell. Mata ji, you just sorry. Abhimanyu ji. Abhimanyu ji. Abhimanyu? Wrong. Samarth. Mata ji, can I tell? माता जी जन्मेजय। Very good. Very good. Excellent. Parikshit's son name is Janmejay. Okay. Another question. What were the three names of the brothers or three brothers of Janmejay? Janmejay के तीन भाइयों के नाम क्या थे? Okay. कौन बताएगा? परीक्षित सिंह. परीक्षित सिंह. Ugrasen, Bhimasen, and Shrutasena. Yes, very good. Shruttasen, Ugrasen and Bhimsen. Okay. Okay, very good. Okay. Okay. What was the name of the heavenly dog? वो स्वर्ग की कुतिया का क्या नाम था जो उनके यज्ञ में आई थी? यस. त्रिशिका. यस त्रिशिका. Sarma. शर्मा. वेरी गुड. यू वर देयर यस्टरडे त्रिशिका? आप थे कल? Yes, sir. यस. ओके, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the curse that Sharma gave to Janmejay? क्या श्राप दिया था जन्मेजय ने, शर्मा ने जन्मेजय को? Mata ji, क्या श्राप दिया था? Mata ji, can I? यस रियांत. क्या कि आपके ऊपर कोई भी अनवांटेड डेंजर आ सकता हाँ, कि कभी भी अचानक से आपके ऊपर कोई भीषण विपत्ति आ जाए. क्यों दिया था ये श्राप? Why did she give that curse? Yes. Mata ji, can I? अमृत सिंह. Because he Video is not, your audio is not good. अमृत, wait. आपका सुनाई नहीं दे रहा आवाज. Okay, tell. अमृत, tell. माता जी क्योंकि जो वे थे उन्होंने उसके बच्चे को बिन फालतू का मारा था। वेरी गुड. हाँ, क्योंकि शर्मा के जो बेटे थे शार में उसको बिना कारण के मारा था, इसीलिए दिया था. ओके. ओके, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट. Who were the three disciples of आयुधौम्य? आयुधौम्य के तीन शिष्य का क्या नाम था? यस माधवी. यस. अवनी, वेद और उपन। लाउडली. अवनी, वेद और उपन्यु। आरुणि, वेद और कौन रहे? ओके, कश्यप. आरुणि, उपमन्यु और वेद. Yes, Aruni, Upamanyu or Ved. Okay, last question. Then we'll switch to our new class, our today's class. Okay, last.
पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने बताया कि नहीं। ओके, आरुणी जो आयुधौम्य के शिष्य थे, उनकी गुरु भक्ति को देखकर आयुधौम्य ने आरुणी का क्या नाम रख दिया दूसरा? बताया था कल? आई डोंट नहीं माता जी, नहीं नहीं बताया। माता जी। बाकी है। ओके ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। जन्मेजय के पुरोहित का क्या नाम था? क्या नाम रखा था पुरोहित का? यस, निकुंज। निकुंज। हाँ, निकुंज। सोम श्रवा। यस, वेरी गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वन मोर लास्ट क्वेश्चन। सोम श्रवा, सोम श्रवा की क्या कंडीशन थी? श्रुत श्रवा ने क्या कहा? सोम श्रवा की क्या कंडीशन थी? यस कृषव। कृषव। उसकी कंडीशन ये थी कि कभी भी कोई भी ब्राह्मण आएगा तो वो दान देने के लिए रेडी रहेगा। Yes, very good. Okay, okay. So now today we will start our session. Now everybody will see on the screen. Okay, okay. From the screen, also. Okay, now who wrote? How much time it took for Ganesh to write the Mahabharat? कितना समय लगा था गणेश को महाभारत लिखने में? Yes, Bhakti. माता जी 3 years. 3 years. Very good. Okay, okay. Now we'll shift to our. Okay, everybody now. Put your hands down. We'll just share the screen now. हेलो। Everybody can see the screen now. Mahabharat Wisdom Tales. This is our 7-day session on Mahabharat Wisdom Tales. We are going to learn everything from Mahabharat, right? Okay. Okay. First question. What are the names of 4 Vedas? 4 वेदों के नाम बताइए। 4 वेद के नाम बताइए। Who will tell? All the boys who says, then they only say. What about the others? 4 वेद के नाम बताइए। ओके, हरिप्रिया। माताजी ऋग्वेदा, सोमवेदा, यजुर्वेदा and माता जी can I tell? ऋग्वेदा, एड्रेस करना तू। ऋग्वेदा, सामवेदा। ओके, नेक्स्ट समर्थ। समर्थ। माता जी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद, वेरी गुड। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओके, सो महाभारत. What is Mahabharat? Mahabharat is the Pancham Ved. It's the 5th Veda. There are the 4 Vedas. ऋग वेद लिख लीजिए, सब कुछ पूछने वाली हूं। काहुत गेम जब होगा तो सब कुछ पूछे, लिख नोट डाउन करिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, एंड महाभारत इज द Pancham Ved. It's the 5th Ved. Okay. Next, how many Puranas are there? माता जी, Yes. I have a doubt. Yes. What 5th way do you tell?
तभी उनको ये झाड़ दे। महाभारत इज द फिफ्थ वेद, पंचम Okay. वेद। महाभारत को क्या बोलते हैं? माता जी can पंचम I वेद। tell? ओके, माता जी लिख ओके। हाउ माता मेनी जी can I tell the answer? Puranas are there? Yes, Brihant. मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयं अनापलिंगपुष्टानि पुराणानां प्रचक्षते. There are 18 Puranas, main Puranas. Yes, there are 18 Puranas. Okay. There are 18 Puranas. Okay. 18 The Puranas. video is stuck, Mataji. 6 is the Sattvic Puran. 6 is the... Everybody mute yourself. 18 Puran. Who is with दीदी you? पूरा नाम है। Everybody mute yourself. There are 18 Puranas, and how many Upanishads are there? How many Maximum Upanishads are there? Yash, तुमका how many Upanishads are there? कितने उपनिषद हैं? कौन सबसे मोटे श्लोकाలు पुराण ना कौन सबसे लाइन श्लोकाలు पुराण निकुंज, कितने उपनिषद हैं? Who will tell? Kashyap, 108 उपनिषद. yes, very good. 108 उपनिषद और 18 पुराण. Okay. Next question. Which Puran has the maximum number of verses and which has the least? किस पुराण में सबसे ज्यादा श्लोक है और who is making lines on the screen? Nobody will make lines on the screen. पुराण में सबसे ज्यादा श्लोक है और किस पुराण में सबसे कम? चलो, कौन बताएगा? किस पुराण में सबसे ज्यादा श्लोक है और किस पुराण में सबसे कम? माता जी नहीं, ऐसा नहीं. रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड. किस पुराण में सबसे ज्यादा श्लोक है? ओके, राजवंश. माता जी स्कंद पुराण. हाँ, स्कंद पुराण में क्या है? तो गूगल. सबसे ज्यादा इसमें श्लोक है. ऐसे ही क्वेश्चन देकर गूगल नहीं करना है. यू विल नॉट गूगल, यू विल जस्ट आंसर फ्रॉम योरसेल्फ. कई बच्चे क्वेश्चन देकर गूगल करेंगे. यू विल नॉट गूगल, यू हैव टू टेल योर आंसर योरसेल्फ. ओके, किस पुराण में सबसे ज्यादा श्लोक है? स्कंद. स्कंद पुराण. 81,000. हाँ 81,000 है ना कुछ. हाँ, स्कंद पुराण में 81,000 वर्ष है. 81,000. और किस पुराण में सबसे कम है? यस ब्रियांत, किस पुराण में सबसे कम है? मत्स्य पुराण. मत्स्य पुराण. कितने वर्ष है? तो वो तो पता नहीं, भूल गया. माता जी विच पुराण? इट्स मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण. सी, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्स है स्कंद पुराण में 81,000 और सबसे कम वर्ष है मार्कंडेय पुराण में 9,000. 9,000 वर्ष है मार्कंडेय पुराण में और स्कंद पुराण में 81,000 वर्ष है. ठीक है. सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण और सबसे छोटा पुराण है मार्कंडेय पुराण. ओके, नेक्स्ट. मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट है. ओल्डेस्ट है. सबसे छोटा की बात कर रही हूँ. सबसे छोटा हाँ, छोटा मार्कंडेय. पुराण है मार्कंडेय पुराण. ओके, नेक्स्ट. नेम द 5 पांडवास एंड हुज अंश आर दे. 5 पांडव के नाम बताइए और साथ साथ ये भी बताना है कि हर एक पांडव किस अंश है, किसका अंश है. 5 पांडव के नाम बताइए और साथ में ये भी बताना है कि हर एक पांडव जो है, जैसे युधिष्ठिर, वो किसके अंश हैं. आपको आता है तभी आप रेज हैंड करेंगे, नहीं तो रेज हैंड्स डाउन. माता जी can I tell? यस निकुंज. यस निकुंज. माता जी अर्जुन इज द नहीं, अंश ऑफ. अर्जुन से नहीं. स्टार्ट से फर्स्ट से स्टार्ट करिए. युधिष्ठिर से स्टार्ट करिए. युधिष्ठिर इज द अंश ऑफ धर्मराज. भीम इज द अंश ऑफ लाउडली से प्लीज. लाउडली से लाउडली. युधिष्ठिर is the अंश of धर्मराज. Yes. And Bhim is wind god.
uh, and Arjun is Indradev. Very good. Nakul and Sahadev is Ashwini Kumar. Very good. Very good. Excellent. Very good, Nikunj. Yudhishthir is the ansh of Dharmaraj. Bhim is the ansh of Vayudev. Arjun is the ansh of Indra. And Nakul and Sahadev are the ansh of Ashwani Kumaras. Everybody is noting? Now, Tej, why are you raising your hand? Mataji, please repeat again. Yes, I am repeating. सभी को नोट करना है. मैं कभी भी किसी से पूछूंगी. युधिष्ठिर है धर्मराज के अंश हैं. भीम है वायु के अंश. अर्जुन है इंद्र के अंश. नकुल और सहदेव हैं वो ट्विन अश्वनी कुमार के अंश हैं. राइट? नोटेड? Mataji, what you tell of हाँ, Yudhishthir, Raj and Arjun? युधिष्ठिर धर्मराज के. धर्मराज. Okay, okay, next question. And Mataji, Nakul and Sahadev? Ashwani Kumar. Okay. Okay. How many Kauravas are there and who was the eldest? This everybody knows, I think. How many Kauravas are there and who was the eldest? Mataji, can I? Yes. 100 Kauravas are there and Duryodhana is the oldest. Duryodhan was the eldest. How many Kauravas? 100 Kauravas were there and Duryodhan was the eldest. Okay. Next. Who was Bhishma, Pitama and Vidura in the previous life? There is a spelling mistake. Who was Bhishma, Pitama and Vidura in the previous? Bhishma, Pitama और विदुरा अपने पिछले जन्म में कौन थे? कौन बताएगा? भीष्म पितामह अपने पिछले जन्म में कौन थे? भीष्म पितामह अपने भीष्म पितामह पता है ना? जिनकी माता का क्या नाम था? भीष्म पितामह की माता का क्या नाम था? गंगा माता. गंगा. वेरी गुड. एंड पिता का क्या नाम था? क्या नाम था पिता का? शांतनु. शांतनु. यस, परीक्षित. पिता का क्या नाम था? माताजी, शांतनु. वेरी गुड. परीक्षित नोज ऑल द आंसर. शांतनु और गंगा. ओके. अभी भीष्म पितामह, जिसको आंसर पता है वही रेज हैंड करे. भीष्म पितामह पिछले जन्म में कौन थे? कौन थे? कौन रेज किया हैंड? यस, वासु यादव. वासु यादव के नाम से ही तो मिलता है आंसर. ओके. एनी न्यू हैंड आई वांट टू सी. नोबडी इज न्यू. ओके, ब्रिहांत. माताजी, वो दीव नाम के वसु थे. अमॉन्ग द 8 वसुस जो हायर प्लैनेट्स में रहते हैं, जो हमसे सुपीरियर हैं, दे आर लाइक गंधर्वास. ओके. तो वसुस 8 वसु होते हैं टोटल. उसमें से वो एक वसु थे, उनका नाम था द्यू. द्यू नाम के एक वसु थे जिन्हें श्राप दिया गया था. श्रापवश वो क्या बने दूसरे जन्म में? भीष्म पितामह. ठीक है. भीष्म पितामह का पहले नाम क्या था जब उन्होंने क्या बोलते हैं वाव नहीं लिया था? उसके पहले उनका नाम क्या था? यस, समर्थ. माताजी, देवव्रत. देवव्रत. वेरी गुड. और उसके बाद जब उन्होंने वाव लिया, क्या वाव लिया था उन्होंने? क्या प्रतिज्ञा ली थी? या त्रिशिका. त्रिशिका आ गई. त्रिशिका. यू नो त्रिशिका? यस मैम. बोलो. ब्रह्मचार्य. कि वो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली, भीषण प्रतिज्ञा ली. ऐसी भीषण प्रतिज्ञा लेने से उनका नाम क्या बन गया? अभी भीष्म. उनका नाम देवव्रत से क्या हो गया? भीष्म. माताजी. यस. माताजी, पितामह का पिछले जन्म में नाम क्या था? द्यो. DUO. द्यो.
ओके, और विदुरा पिछले जन्म में क्या थे? विदुरा कौन थे पिछले जन्म में? कौन बताएगा? भीष्म पितामह तो द्यो नाम के वसु थे, और विदुरा कौन थे? माताजी कहना है विश्वंभर। यमराज। हाँ, वेरी गुड। विदुरा थे यमराज, उनको श्राप मिला यमराज को, और फिर वो क्या बन गए दूसरे जन्म में? विदुरा। ओके ओके ओके, नेक्स्ट। Okay, now we'll just move to our sloka memorization. This is, do you know? Now we'll move to the sloka memorization. Today we are yesterday's slokas. Okay, first let me see how many of you have learned the yesterday's verse. पहले कल का वर्स देखेंगे, फिर आज एक नया वर्स सीखेंगे. Okay, who will tell the yesterday's verse? किसने याद किया कल का श्लोक? मैंने आपको वॉइस मैसेज भी भेजा है ग्रुप में, सुन के याद करने के लिए. कल का श्लोक किसने याद किया? यस, लक्ष्य चौधरी. वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अधोऽन्तश्च मध्ये च हरिणा हरि सर्वत्र. हरि सर्वत्र गीयते. वेरी गुड. यस, राजवंश. यस यस, राजवंश कहाँ गया? माताजी आई नॉट लर्न। ओके, तो व्हाई डिड यू रेज योर हैंड? माधवी. यस, माधवी. वेद रामायणे चैव पुराणे भारते तथा उद्भवन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, केशवी. वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरि भक्ते च हरि सर्वत्र गीयते. यस, हरिप्रिया. वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदाव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते. Okay, very good. Okay, what is the meaning? Who will tell the meaning? Who will tell the meaning? Bhakti. Bhakti will tell the meaning. Tell the meaning, Bhakti. इस श्लोका में ऐसा बोल रहे कि वेद है, रामायण है, पुराण है, महाभारत है, जो भी सब पुराण है, उपनिषद है, वो सब में हरि वो सब हाँ हरि हरि हाँ हरि वो सब में हरि का मीन्स भजन गाया हुआ मीन्स हरि का ही गुणगान हरि किया का ही गया है. गुणगान आदौ अंते च मध्य च, शुरुआत में, बीच में और अंत में सभी जगह हरि सर्वत्र गीयते. हरि सर्वत्र गीयते मीन्स गीयते मतलब गान किया है. सभी जगह हरि का ही गान किया है. किसमें? वेदे रामायण च, वेद हो, रामायण हो, पुराण हो, महाभारत हो, सभी जगह आदो अंते च मध्य च, शुरुआत में, अंत में, मिडिल में, हरि सर्वत्र गीयते, सभी जगह हरि का ही गुणगान किया गया है. इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महाभारत में हरि का गुणगान नहीं किया या पुराण में हरि का गुणगान नहीं. ये श्लोक क्या बोल रहा है? सभी जगह, वेद हो, रामायण हो, पुराण हो, भारत, भारत मीन्स महाभारत हो, सभी जगह हरि का ही गुणगान किया गया है. ओके ओके, दिस इज द ओके. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी न्यू वर्स. शिला प्रभुपाद ऑफन यूज्ड टू कोट दिस वर्स. शिला प्रभुपाद हम बार बार इस वर्स को कोट करते थे. हम सभी लोग इस वर्स को याद करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट यू रिपीट आफ्टर मी. अहानि अहानि भूतानि अनि अनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्. शेषस्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् ततः परम्.
किम आश्चर्यम अगेन अहनी अतः अहनी परम अहनी अहनी भूतानि अहमेवानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् गच्छन्ति यमालयम् शेषस्थावरम् इच्छन्ति इच्छन्ति किम आश्चर्यम् अतः परम् अगेन 3 टाइम अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषस्थावरम् इच्छन्ति किम आश्चर्यम् अतः परम् ओके दिस वर्स किसी को ये वर्स पहले से याद है? पहले हैंड्स डाउन, ऑल ऑफ द हैंड्स डाउन, अननेसेसरी सबके हाथ नीचे करिए पहले। यस ओके कोई भी बच्चा है जिसको ये वर्स पहले से याद है, पहले से आता है ये वर्स? ओनली भक्ति नोज दिस वर्स। ओके और किसी को नहीं आता, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट दिस वर्स इज अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। पता है ये वर्स कौन बोल रहा है, ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये युधिष्ठिर महाराज किसको कह रहे हैं? यक्ष को कह रहे हैं। वो स्टोरी आती है महाभारत में। एक बार जब पांडव लोग जंगल में जंगल में होते हैं तो सभी पांडवों को बहुत प्यास लगती है। तो युधिष्ठिर महाराज अन्य अपने भाइयों से कहते कि देखो तो पास में कोई रिवर है क्या, नदी है क्या? तो अर्जुन देखते कि दूर से पेड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि कोई नदी है, तो दिखाई देती कि हाँ कि नदी है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि ठीक है जाके पानी भर के लेकर आओ। तो अर्जुन जाते हैं। तो जैसे ही नदी के पास जाके पानी, पहले सोचते खूब पानी में पी लेता हूँ फिर उसमें भर के लेकर जाऊंगा। तो पानी जैसे ही पीने के लिए बैठते तो तुरंत आवाज आती है, तुम ये पानी नहीं पी सकते, तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तो यक्ष कहते हैं कि तुम ये पानी नहीं पी सकते, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा फिर तुम ये पानी पी सकते। अब अर्जुन होते हैं हड़बड़ी में, अर्जुन को बहुत प्यास लग रही होती है। अर्जुन मुझे नहीं जवाब देना, मुझे सिर्फ पानी पीना है। तो अर्जुन पानी पीते और मर जाते, वहीं मर जाते क्योंकि वो यक्ष का जवाब नहीं देते। ठीक है, क्योंकि यक्ष कहता है कि अगर तुम पानी पियोगे मेरे जवाब दे पहले पानी पी लोगे तो तुम मर जाओगे। तो अर्जुन मर जाते। फिर बहुत देर हो जाती है, युधिष्ठिर महाराज राह देखते क्यों नहीं आए, भीम को भेजते हैं। फिर भीम जाते, भीम देखते अरे अर्जुन को क्या हो गया, तो सोचते चलो पानी पी लेता हूँ उसके बाद देखता हूँ। फिर पानी जैसे ही पीने जाते हैं तो यक्ष कहता है कि आप ये पानी नहीं पी सकते, आपको पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा नहीं तो आप मर जाओगे। तो फिर भीम भी इग्नोर करते हैं, भीम भी मर जाते। फिर ऐसे करके नकुल और सहदेव जाते, वो भी ऐसे ही करते, पानी पीते जवाब नहीं देते, वो भी मर जाते। ऐसे करके सब चले जाते, युधिष्ठिर अकेले आश्रम में वेट करते कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं आए, कि मेरे भाई कहाँ चले गए, परेशान होते रहते। फिर युधिष्ठिर जाते, देखते अरे चारों के चारों भाई वहां नदी के किनारे मरे पड़े हैं, क्या हो गया। तुरंत फिर वो नदी के पास जाते और सोचते थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर सोचता हूं। फिर जैसे ही वो नदी पे पानी पीने के लिए ऐसे करते, तुरंत यक्ष कहते आपको पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा नहीं तो जैसे आपके भाई मर गए वैसे आप भी मर जाओगे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि ठीक है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, वो पेशेंस रखते हैं, उनके पास पेशेंस है, उनके पास धैर्य है। वो बोलते ठीक है आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको जवाब दूंगा। तो ऐसे यक्ष बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं। फिर यक्ष पूछते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है, व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक मतलब सरप्राइजिंग चीज इस भौतिक जगत में क्या है, प्लीज बताइए। तो पता है युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, किसी को पता है क्या कहते हैं?
क्या कहते युधिष्ठिर महाराज? आप क्या बोलते अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मोबाइल फोन, इंटरनेट? पेशेंस। हाँ? रेजा, सोहम, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्य जादू। क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? Yes, सोहम? मृत्यु। हाँ? मृत्यु। ओके। मृत्यु। आदित्य तिवारी, आप क्या बोलोगे अगर आपसे पूछ ले कि भाई संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्य क्या है, तो आप क्या बोलोगे? यूँ कह रही है कि अगर आपसे कोई पूछे कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक कोई चीज है, क्या चीज है वो बताओ। नहीं, वो ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आपसे पूछेंगे तो यस रिहान, आपसे पूछे कि भाई सबसे ज्यादा, युधिष्ठिर महाराज क्या पूछे वो नहीं, आपसे कोई पूछे युधिष्ठिर महाराज क्या बोले वो छोड़ो, आपसे कोई पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा संसार में आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो आप क्या जवाब देते उस समय? नो, यू विल नॉट स्पीक, नोबडी विल स्पीक विदाउट आस्किंग। बिना पूछे कोई जवाब नहीं देगा। ओके रिहान। हाँ माता जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आश्चर्यजनक ये चीज है कि जब हम प्रीचिंग करने जाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि मतलब आप इतने कष्ट में हो, तो भी कैसे मतलब इतना कष्ट भोग के भी वो लोग समझते नहीं है, ये मुझे आश्चर्य लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके भक्ति, आप क्या बोलते? आपसे पूछते, यक्ष आपसे पूछता कि भक्ति सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं ऐसा जवाब दे सकती हूँ कि ये जगत में सबसे आश्चर्यजनक बात है कि माया माया सभी लोग को पकड़ लेती है, एक लोग को भी नहीं छोड़ती, पर अगर जो कोई भी लोग भगवान का भक्त बन गया उसको छोड़ देगी। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ओके वेदांती, आप क्या बोलते? यक्ष आपसे पूछ लेता, पानी पीने जाते आपसे पूछ लेता, वेदांती बताओ इस संसार में सबसे आश्चर्य क्या है, तो आप क्या जवाब देते वेदांती? भगवान। भगवान। भगवान की। भगवान सबसे आश्चर्यजनक चीज है, नहीं? भगवान ही समझ नहीं आते, बाकी सब समझ आ जाता है। ओके ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज पता है क्या बोले? युधिष्ठिर महाराज बोले अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अहानि अहानि भूतानि, इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है कि अहानि अहानि भूतानि, हर रोज लोग, भूतानी, भूतानी मतलब हर रोज जीव, आहनी आहनी करके धीरे धीरे करके भूतानी, मतलब भूतानी मीन्स जीव, हर रोज जीव गच्छन्ति यमालयम, हर रोज इस संसार में लोग मर रहे हैं और यमालयम, यम के आलय में जा रहे हैं, मतलब यमराज के पास जा रहे हैं, पर भी शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। पर जो लोग रह गए हैं वो ऐसे सोचते कि मैं तो शेषः स्थावरम, मैं तो परमानेंट यहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं नहीं मरने वाला, मेरे रिश्तेदार मर गए, मेरे दादा मर गए, मेरे परदादा मर गए, पर शेषः जो बच गए हैं वो स्थावरम इच्छन्ति, वो सोचते कि मैं तो यहाँ परमानेंट रहूंगा, किम आश्चर्य मत परम। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि ये सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है कि सब लोग धीरे धीरे करके मर रहे हैं, यम के आलय में जा रहे हैं, पर शेषः स्थावरम इच्छन्ति, पर जो लोग रह गए हैं वो ऐसा सोचते कि मैं तो नहीं मरने वाला, मेरे दादा मर गए, मेरे परदादा मर गए, मेरे रिश्तेदार मैं देख रहा हूं मर रहे हैं, पर मैं स्थावरम, मैं यहाँ परमानेंट रहने वाला हूं, ये सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है। ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष से कहा। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने ये जवाब यक्ष को दिया, यक्ष बहुत खुश हुए युधिष्ठिर महाराज से, और युधिष्ठिर महाराज से पूछे कि ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ, तुम कोई भी एक भाई बोलो, मैं उस भाई को जिंदा कर दूंगा। ओके, तो पता है युधिष्ठिर महाराज ने किसको बोला जिंदा करने के लिए? क्या बोला होगा युधिष्ठिर महाराज ने? यस, किसको जिंदा करने के लिए बोला? भीम? अर्जुन। नो, देवर्षि।
किसको बोला? नकुल। हाँ, नकुल। नो, सहदेव। सहदेव। यस मैं यस, बृहद, किसको जिंदा करने के लिए बोला? सहदेव को माता जी सहदेव एक डाउट है। को जिंदा रखने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कुंती महारानी माद्री को, मेरी जो दो मातन को क्या जवाब दूंगा? अगर मैं भीम और अर्जुन को जिंदा करूंगा तो कुंती माद्री की तो कोई संतान रहेगी नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सहदेव जिंदा हो जाए ताकि एक संतान कुंती की और एक संतान माद्री की रहे। ओके, इस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया। ओके, सो ये हमारा श्लोक क्या क्या अगेन, आहनी आहनी भूतानी, एवरीबॉडी Everybody say this. Ani, ani, bhutani, gachanti, हिमालयम shah savaram icchanti, kim ashram किसने श्लोक याद कर लिया? Who remembered this verse? Raise your hand. Yes, Krishav. Yes, Krishav. अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयं शेषस्थवरमिच्छन्ति किम् आश्चर्यमतः परम्। Very good. Yes. और कोई? और कौन याद है? लक्ष्य चौधरी। आनि आनि भूतानि गच्छन्ति अमालयं शेषस्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अथं परम्। हाँ, वेरी गुड। और कोई? यस, माधवी। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयं शेषस्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अथं परम्। Very good. Okay, so this is the verse. Everybody will remember this verse. अब सभी को ये वर्स रिमेम्बर करना है, याद करना है। कल मैं पूछने वाली हूँ, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी ये वर्स, आप सबको ये वर्स याद करना है। ओके, नाउ आई वांटेड टू टेल यू द स्टोरी ऑफ गरुड़ा। पर थोड़ी सी गरुड़ा की जो स्टोरी है मैं अच्छे से सुनाना चाहती हूँ। किसी को पता है गरुड़ा की स्टोरी? कोई? पहले हैंड्स डाउन, हैंड्स अप डाउन, एवरीबॉडी हैंड्स डाउन। किसको पता है गरुड़ा की स्टोरी? महाभारत से, महाभारत से गरुड़ की स्टोरी किसको पता है? उसी वही हाथ रेस करेगा। लक्ष्य, यू नो? ब्लैक लाइट जलाओ पहले तो। लक्ष्य, यू नो द स्टोरी? क्या पता है आपको? क्या स्टोरी पता है? नो। ओके, ओनली ब्रिहान नोज द स्टोरी। गरुड़ा की स्टोरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, और गरुड़ा ने कैसे अमृत को चुराया वो भी महाभारत में स्टोरी आती है। अभी आपके पास ऑप्शन है, या तो मैं कल वाली वो उपमन्यु की स्टोरी बाकी थी वो सुना दूं, वो शॉर्ट है, और या तो मैं गरुड़ा की स्टोरी सुना सकती हूँ पर वो लॉन्ग होगी, ट्रेजर हंट भी करना है अपने को। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट द गरुड़ा स्टोरी? गरुड़ा स्टोरी होगा तो आधा ही हो पाएगा, थोड़ा ही हो पाएगा। और अगर उपमन्यु की स्टोरी कल बाकी थी वो आज मैं सुना दूं? ओके, कल गरुड़ा की स्टोरी ले लेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू से कि गरुड़ा वाली स्टोरी सुना है? हाउ मेनी से गरुड़ा वाली? हाउ मेनी से गरुड़ा की स्टोरी? डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। ओके, हाउ मेनी से उपमन्यु स्टोरी? उपमन्यु स्टोरी, yes, उपमन्यु story. Okay, so today I will tell उपमन्यु story. Tomorrow I will just shorten this. There will be no sloka memorization tomorrow. I will tell the Garuda story tomorrow. ठीक है, कल हम लोग थोड़ा टाइम बचा के गरुड़ा की स्टोरी पूरा बड़े से अच्छे से लेंगे। तो आयुधौम्य के एक और शिष्य थे, उनका नाम था उपमन्यु। ओके, तो जिस प्रकार से आयुधौम्य ने आरुणि की टेस्ट लिया उसी प्रकार से आयुधौम्य ने उपमन्यु का भी टेस्ट लिया। पता है, पहले के जमाने में जो गुरु होते थे ना वो अलग प्रकार से टेस्ट लेते थे। जैसे आजकल हमारे टेस्ट कैसे होते हैं, साइंस टेस्ट,
फिर मैथ्स टेस्ट, फिर इंग्लिश टेस्ट, ऐसे एग्जाम में लिखनी होती है, एग्जाम में पास करना होता है, मार्क्स लेनी होती है, कितना मुश्किल लगता है। पर पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले गुरुकुल में गुरु अपने प्रकार से टेस्ट लेते थे। वो देखते थे कि किस प्रकार से उनका शिष्य सही में गुरु को शरणागत है कि नहीं। वो बोलते भी नहीं थे। इट्स अ सरप्राइज टेस्ट। आज के टेस्ट की तरह नहीं कि डेट्स फिक्स हो गए और पहले आप मगअप कर लिए क्वेश्चन आंसर ये वो, और फिर जाके बस उल्टी कर दिया, जाके पेपर में लिख दिया और मार्क्स मिल गया और आप टॉपर बन गए। नहीं, पहले गुरुकुल में आपका आचरण देखा जाता था। आपके गुरु जो होते थे वो सही में देखते थे कि भाई आप जो ये शिष्य है वो गुरु को शरणागत है कि नहीं। सही है। तो जैसे हमने आरूढ़ी को देखा, कैसे जाकर वो क्या किया, खुद ही जाकर लेट गया। उसके गुरु ने क्या बोला था कि देखना भाई कि पानी जा रहा है कि नहीं खेत में। तो उसने क्या किया, यस त्रिशिका, क्या किया उसने, आरूढ़ी ने क्या किया, कोई बात नहीं, रस्ते में खानी है, बार बार फोन किया त्रिशिका, आरूढ़ी ने क्या किया, अब नहीं खाऊंगा। यस आदित्य तिवारी, आरूढ़ी ने क्या किया, नहीं, चाय पिएगा तो कल थे आप क्लास में, बाद में खा ली, थोड़ा रुक के खा ली। बिस्किट ओके। तो खाऊंगा। माधवी शेट्टी, हाँ माधवी, माधवी कल आरूढ़ी ने क्या किया, अरुणी ने वो किसी को नहीं पता चला आरूढ़ी ने क्या किया। मैम बट मुझे पता है। यस कश्यप, आरुणि वहाँ पे लेट गई थी क्योंकि वो पानी का प्रवाह वहां से निकल ना सके इसलिए। यस वो खुद ही जाके लेट गए, आरूढ़ी खुद ही जाके लेट गए वहां पे ताकि पानी बाहर जाए ना। राइट। उसी प्रकार से उपमन्यु भी आयुधाम्य के शिष्य थे। ओके। तो एक दिन देखो गुरुकुल में जो गुरु होते हैं वो कैसे टेस्ट करते हैं हमें। तो एक दिन आयुधाम्य ने उपमन्यु को बुलाया और कहा कि उपमन्यु तुम आज से गायों को चराओगे, गायों को चराने के लिए लेकर जाओ, सुबह जाओगे और रात को आओगे, ठीक है। तो उपमन्यु ने बोला ठीक है गुरुजी, मैं आज से गाय चराने जाता हूं। तो उपमन्यु गए। तो अभी गायों को चराएंगे तो भूख तो लगेगी ना, कुछ खाएंगे कि नहीं। यस, गाय को चराएंगे तो खाएंगे ना बीच में। तो उपमन्यु गायों को चराने जाते, सुबह से रात तक चराने जाते। तो शाम को जब उपमन्यु लौट के आए तो उनके गुरु ने उपमन्यु से पूछा कि उपमन्यु तुम तो दिन पर दिन बहुत हिष्ट पुष्ट लग रहे हो, तुम्हारा शरीर तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तुम खाते क्या हो, क्योंकि तुम तो आश्रम में तो खाते नहीं हो, आश्रम में तो तुम प्रसाद लेते नहीं हो, तो तुम खाते क्या हो। तो उपमन्यु ने कहा कि मैं जाता हूं ना गाय को चराने, तो मैं वही गांव में भिक्षा मांग के खा लेता हूँ। तो गुरु ने कहा अरे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें पहले भिक्षा मांग के किसको देना चाहिए, गुरु को पूछना चाहिए। तुम तो गुरु को पूछे बिना खा लेते हो, तो तुम आगे से ऐसा नहीं करो, तुम भिक्षा मांग के लाओगे और भिक्षा मांग के मुझे दोगे और फिर ही तुम खाओगे। तो उपमन्यु बोले ठीक है गुरुजी, जैसा आप बोले। ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं किया, अरे गुरुजी मैं वापस आऊंगा दूंगा, तब तक तो मेरी भूख मर जाएगी, मैं तो कैसे करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो पतला हो जाऊंगा, नहीं कुछ नहीं। यस, जैसे गुरु बोले यस, बस दैट्स नो आर्ग्यूमेंट्स। फिर उपमन्यु गाय चराने गए दूसरे दिन, भिक्षा मांगा, तो भिक्षा मांग के लाए, तो भिक्षा गुरु को दी। तो गुरु को देने के बाद गुरु ने उसको कुछ दिया ही नहीं वापस खाने के लिए, गुरु पूरा ही एक्सेप्ट कर लिए, उपमन्यु को कुछ खाने को दिया नहीं। तो उपमन्यु बोले ठीक है नो प्रॉब्लम, गुरु ने नहीं पूछा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद दिन बीतता गया, उपमन्यु भिक्षा मांग के लाते, गुरु को दे देते, गुरु देते नहीं। उसके कुछ दिनों बाद आयुधाम्य ने उपमन्यु को बुलाया, अरे उपमन्यु तुम तो अभी भी बहुत हिष्ट पुष्ट लग रहे हो, अभी भी स्ट्रांग लग रहे हो, अभी तुम क्या खाते हो, सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूं। तो उपमन्यु ने बोला कि पहली जो भिक्षा है ना वो मैं आपको दे देता हूं और मैं वापस जाता हूं दूसरी भिक्षा लेकर वो खा लेता हूं। आप पहली भिक्षा ले लेते हो और दूसरी भिक्षा लेकर मैं खा लेता हूं। तो गुरु ने बोला अरे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरी भिक्षा भी तुम्हें मुझे देनी चाहिए, और इस प्रकार से सारी भिक्षा तुम मांग के खा लोगे तो मेरे दूसरे शिष्य क्या करेंगे।
मेरे दूसरे शिष्य क्या खाएंगे, तो इसीलिए तुम दूसरी भिक्षा नहीं मांगोगे। तुम पहली भिक्षा मांग के मुझे दोगे, पर दूसरी भिक्षा तुम नहीं मांगोगे। तो उपमन्यु ने बोला, यस गुरुजी, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि अरे गुरुजी आप कैसे गुरु हैं, मैं तो जा रहा हूं अपने घर, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हो, है ना। अगर कश्यप आपके साथ ऐसा गुरु करे तो आप क्या करोगे? आपके टीचर ऐसा करे तो आप क्या करते? आप वहां आश्रम में रहते कि भाग जाते? मैं गुरुजी से प्रार्थना करता कि प्लीज आप मुझे भी थोड़ा खाने के लिए दे दीजिए। और उसके बावजूद भी गुरु नहीं देते तो क्या करते? घर भाग जाते? तो फिर मैं तीसरी भिक्षा लेके वो खाता। अगर मैं होता तो मैं बहुत खुश होता। वेरी गुड। ओके, तो उपमन्यु ने ऐसा नहीं किया। उपमन्यु ने, गुरु ने कहा कि आप भिक्षा नहीं लोगे तो भिक्षा नहीं लिए, और फिर चले गए वापस दूसरे दिन गाय चराने। उसके बाद कुछ दिन बीतता गया, फिर वापस गुरु ने बुलाया उपमन्यु को और कहा कि अरे उपमन्यु, तुम तो अभी भी हट्टे कट्टे दिख रहे हो, खाना नहीं मिल रहा है, सब भिक्षा भी बंद करा दी, पहली भिक्षा भी मैंने ले ली, तो तुम तो हट्टे कट्टे दिख रहे हो, तो अब क्या खाते हो? तो उपमन्यु ने कहा कि गुरुजी आपने तो भिक्षा के लिए मना कर दिया, तो मैं गाय चराने जाता हूं तो गायों का दूध ही पी लेता हूं, गायों का दूध पी के मैं अपना पेट भर रहा हूं। तो गुरु ने कहा कि अरे, इस प्रकार से तुम गायों का दूध पी जाओगे तो बेचारे बछड़े क्या करेंगे, बछड़े भूखे रह जाएंगे, तो ऐसा तुम नहीं करो। तो उपमन्यु बोला, यस गुरुजी, ठीक है, जैसा आप कहें, नो प्रॉब्लम। तो फिर उपमन्यु ने दूध भी पीना बंद कर दिया। उसके बाद दिन बीता, दिन बीता, फिर वापस उपमन्यु को बुलाया और कहा कि अरे उपमन्यु, तुम्हें तो बिल्कुल भी कमजोरी नहीं लग रही, तुम्हारा तो भिक्षा भी बंद करा दिया, दूध भी बंद करा दिया, अब आप क्या करते हो? तो उपमन्यु ने कहा कि आपने तो दूध बंद करा दिया, मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने, जब बछड़े दूध पी रहे थे तो उनके साइड साइड से दूध गिर रहा था, जब वो दूध पीते हैं बछड़े तो उनके साइड साइड से जो दूध गिर रहा था उसी को चाट लिया मैंने और उसी से पेट भर ली। इस प्रकार से उपमन्यु ने कहा। तो फिर आयुधम ने कहा, उनके गुरु ने कहा कि अरे, इससे तो बछड़ों को कितनी परेशानी हो रही होगी, तुम उनके साइड साइड से दूध चाटोगे तो बछड़े कितने परेशान होंगे, आप ऐसा नहीं करोगे। अब उपमन्यु के सामने सारे रास्ते बंद हो गए, दूध भी, भिक्षा भी बंद हो गई, दूध भी बंद हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे राजवंश? घर भागे, अब गुरुकुल छोड़ के घर भागे, राइट? यस, गुरुकुल छोड़ के घर भागने के बाद बच्चा ही क्या, खाना ही बंद हो गया सब। यस अमृत? तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जयवर्धन क्या करें? यस, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो भागूंगा, मैं तो और खुश होऊंगा, मैं तो ऐसे नाचूंगा गाऊंगा। यस, वेरी गुड। जयवर्धन तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, गुरुकुल में ही रहेगा, वही डांस करेगा। ओके ओके, फिर अभी, यस यस माता जी, यस, I will borrow fruits from the trees. अच्छा, मतलब कुछ भी करके खाना पीना रोजगार कहीं से कहीं जुगाड़ कर लेंगे, जंगल में कहीं से भी जुगाड़ कर ले, नहीं। पर उपमन्यु ने ऐसा नहीं किया। अभी आगे स्टोरी सुनो, जल्दी स्टोरी खत्म करके ट्रेजर हंट में जाना है। ओके, उपमन्यु ने भूखा रहा, कुछ नहीं खाना, भिक्षा भी बंद हो गई, दूध भी बंद हो गया, बछड़ों के साथ भी दूध बंद हो गया। अभी उपमन्यु भूखा प्यासा बेचारा, 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, गुरु पूछ भी नहीं रहे, गुरु टेस्ट कर रहे उपमन्यु की कि ये भाग जाता है कि नहीं भाग जाता। तो गुरु तो टेस्ट कर रहे हैं, उपमन्यु को तो पता है गुरु टेस्ट कर रहे हैं। तो उपमन्यु भूख के मारे, बालक था बेचारा, तो वहां पे एक पत्ते का पेड़ था, तो ऐसे जंगली पत्ते भूख के मारे खा गया, भूख के मारे, भूख लगी थी तो तोड़ के पत्ते, जब पत्ते खा गया, और वो पत्ते थे जंगली, और वो जंगली पत्ते खाने से उसको आंखों की ज्योति खत्म हो गई, वो अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अभी अंधा पड़ गया वो। और अंधा होने के बाद बोला, अरे गुरुजी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसे करके, जंगल में तो कुएं भी बहुत होते हैं, कुएं में जाके गिर गया क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद शाम हो गई, रात हो गई, उपमन्यु आया नहीं।
और गुरु आयुधौम्य ने सोचा अरे उपमन्यु कहाँ चला गया, भूख लग रही थी, कहीं कोई कुछ हो तो नहीं गया उसको। तो आयुधौम्य गए जंगल में और कहा उपमन्यु उपमन्यु कहाँ गए कहाँ गए, सब जगह चिल्लाया। फिर आवाज आई अरे गुरुजी मैं कुएं में हूँ। तो आयुधौम्य ने कहा कि अरे आप कुएं में क्या कर रहे हो। तो फिर उपमन्यु से पूछा, तो उपमन्यु ने कहा कि मैं जंगली पत्ते खा लिया भूख के मारे, इसीलिए मेरी आंखों की ज्योति चली गई। गुरु ने बोला मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत बहुत प्रसन्न हूं, तुमने अपने गुरु भक्ति के लिए अपनी आंखों की ज्योति तक छोड़ दी। सोचो कितनी गुरु भक्ति उसके अंदर। तो फिर आयुधौम्य ने बोला कि चिंता मत करो, तुम अश्वनी कुमारों की प्रार्थना करो। अश्वनी कुमार कौन है? अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। तो तुम उनकी स्तुति करो, अश्वनी कुमार तुम्हारे आंखें को वापस ले आएंगे। तो गुरु ने एक मिनट, यस माताजी टाइम इज अप। हाँ बस बस 2 मिनट और 2 मिनट बस, खत्म हो रही स्टोरी खत्म। ओके तो ना फिर उपमन्यु ने कहा कि भाई अश्वनी कुमारों की स्तुति करी। तो अश्वनी कुमार प्रकट हुए और उपमन्यु को दिया पुआ। पुआ होता है ना, पुआ 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 पता है आपको? पुआ वो गेहूं के आटे का बनता है मीठा पुआ, तो वो खाने के लिए दिया। तो उपमन्यु ने क्या बोला, नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, मेरे गुरु को अर्पण किए बिना मैं कुछ भी नहीं खाता, मेरे गुरु नाराज हो जाते हैं। तो जब अश्वनी कुमार ने ऐसा सुना और देखा कि उपमन्यु के अंदर इतनी गुरु भक्ति है, तो अश्वनी कुमार ने खुश होके उन्हें वरदान दिया कि आप इतने हिष्ट पुष्ट हो जाओ, आपकी की आंखों की ज्योति सब वापस आ जाए और आप वापस से एक अच्छे खासे बच्चे, स्ट्रांग बच्चे बन जाओ। ऐसे करके अश्विनी कुमार ने उनको वरदान दिया, अच्छे से वो वापस से स्ट्रांग बन गया, अच्छे से उसकी आंखों की ज्योति वापस आ गई और दौड़ कर अपने गुरु के पास गया, आशीर्वाद लिया। आयुधौम्य ने उनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि सारे वेद शास्त्र, सारे भक्ति शास्त्र, सब कुछ तुम्हें रिवील हो जाए और तुम एक अच्छे भक्त बन जाओ। ओके तो इस प्रकार से गुरु के आशीर्वाद से उपमन्यु एक अच्छा भक्त बन गया। ओके नाउ फटाफट 5 मिनट्स में हम ट्रेजर हंट खेलेंगे। ओनली इट विल टेक 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट लगेगा। किसी 5 क्वेश्चन है, हम देखेंगे आज का विनर कौन है। अभी इसमें विनर देखने के लिए सबसे पहला मैं पहले इसके क्या रूल्स हैं। ट्रेजर हंट में आपके पास सामने 5 क्वेश्चन आएंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और 5। ठीक है, अभी सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए, पहले हैंड्स डाउन। आदित्य तिवारी यस, अभी यस यस काउट ऐप में खेलना है हमको ये। हाँ काउट ऐप में गेम खेलना है माता जी। नहीं, काहुत में गेम नहीं खेलना है, आज का गेम एकदम सिंपल, इसी में खेलेंगे हम। अभी ये रूल्स है कि मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगी, सबसे पहले हाथ जो उठाएगा, जिसको आंसर आता है, वो विनर होगा। सबसे पहला हाथ, पहले से हाथ उठा, और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो माइनस। आपको आंसर पक्का आता है तभी आप हाथ उठाओ, अगर आंसर नहीं आता तो आप नहीं उठाओगे, नहीं तो आपको -1 आएगा आपको स्कोर। अगर आप दूसरा में करेक्ट आंसर दोगे तो भी आपको -0 हो जाएगा आपका। इसीलिए जब आपको आंसर आता है तब भी आप हाथ उठाओगे, और जो सबसे पहला हाथ उठाएगा उसी से मैं पूछूंगी, वो विनर होगा। ठीक है, ओके नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन जो, और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। विनायक पुट योर हैंड्स डाउन, आदित्य पुट योर हैंड। अगर आपने हाथ पहले उठाया और आपको आंसर नहीं आता, आपको -1। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना है, मैं कुछ भी हिंट नहीं देने वाली। ठीक है, ओके नाउ स्क्रीन पे देखिए सब लोग, मैं क्वेश्चन के बारे में कुछ भी ट्रांसलेट भी नहीं करूंगी, मैं हिंदी में कुछ भी नहीं बोला, आपको ही क्वेश्चन पढ़ना है। ओके स्टार्टिंग नाउ। जो हाथ रेस करेगा वो मुझे तुरंत स्क्रीन पे दिखाई देगा। पहला हाथ किसने रेस किया? फर्स्ट क्वेश्चन, ओके नाउ स्टार्टिंग 10 9 विनायक पुट योर हैंड्स डाउन। 10 9 8 7 6
5, 4, 3, 2, 1, 0. Question 1. Amrit. Mati beam. B. Very good. Okay, Amrit. Amrit first. Okay. Who raised the second hand? Okay, Amrit first. Okay, next question. Put your hands down. Put your hands down. Hands down, Amrit. Hands down. Vinayak, hands down. हाथ नीचे करिए. माताजी can you repeat the answer? Yes, Kashyap. सोमरस. Huh? सोमरस. Somnath? Wrong. सोमरस. Somras, wrong. Vasu. माती भीष्म पितामह. Wrong. सोच समझ के माताजी? आंसर देना. -1 हो रहा है. परीक्षित सिंह. माताजी माताजी बर्बरीक. Very good. Very good, Parikshit. Kashyap -1, Vasu -1, Parikshit the winner. Barbaric. Next question. Hands down. जल्दी से हाथ, जो पहला हाथ उठाएगा वही दिखाई देता है मुझे सबसे पहले. नवतेज, hands down. माती बर्बरीक. बर्बरिक ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं. हैंड्स डाउन. नवतेज, हैंड्स डाउन. हाथ नीचे करिए. विनायक, हाथ नीचे. हाथ नीचे करिए. यस, ब्रिहान. शिखंडी. शिखंडी. वेरी गुड. शिखंडी. ब्रिहान इज द विनर. नेक्स्ट. Hands down, Amrit. I broke the net. You brought. Okay, Amrit, tell the answer. Okay, Brihant. Yes. I broke the maze. Haripriya. अभिमन्यु. Abhimanyu. Very good. लोअर कर हैंड. Haripriya is the winner. Next. Hands down, Rajvansh. Brihant, hands down. Aditya, hands down. Vinayak, hands down. अगर आप हैंड्स रेज रखोगे आपको -1 होने वाला. अरे मैंने पिछले राजवंश. हैंड डाउन क्यों नहीं हो रहा? राजवंश -1. राजवंश -1. यस, हरिप्रिया. माताजी द्रौपदी. द्रौपदी. वेरी गुड. हरिप्रिया 2, परीक्षित 1, अमृत 1, Brihant 1. Last question. Last question. Oh, last question nahi, over. I gave, how many questions I gave? 5 over? 5 questions over? माताजी 4. 5 are there, na? 1, 2. 5 over, na? Yes. Yes. Yes, माताजी. Okay. सही क्वेश्चन ओवर हो गया. Haripriya first, she scored 2 marks. Yes, माताजी. Amrit, Parikshit, and Brihant. Okay, Amrit. Amrit, how many marks? Amrit, you gave 2 answers. Amrit, how many answers you gave correct? माताजी 1. 1. Okay, Amrit 1, Parikshit 1, Brihant 1, Haripriya 2, and Kashyap -1, Vasu -1. Okay. So, okay, the winner is Haripriya. Hari bol to Haripriya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And second winners are Parikshit, Amrit, and Brihant. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
We'll meet tomorrow with another session. Okay. Thank you very much. We'll meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna.